will be increase, and more vapor pressure will be formed, and more vapor pressure will be formed. It means solution will be show positive deviation. It means solution will be show positive deviation from the Raoult's law. Will be show positive deviation from the Raoult's law. That type of solution will be formed. That type of solution will be formed in that condition. That type of solution will be formed in that condition when in solution. मतलब ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया नहीं होंगे? Very good. When hydrogen bond does not be formed. भाई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो वीक टूट जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएंगे. When hydrogen bond does not be formed. For example, a solution of alcohol with benzene. For example, a solution of alcohol with the benzene. अच्छा, एल्कोहल का वाटर के साथ बनाया जाता है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो जाते हैं. पॉजिटिव डेविएशन की वजह से कैसा डेविएशन होता है? वेरी गुड, लिखो. So that solution. बेटा बात मत करो यार, बात करने दो, बता दो, मैं रुक जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं भी करूंगा. अपन तैयार रहते हैं 24 घंटे, ठीक है ना? So that solution which will be show positive deviation. So that solution which will be show positive deviation, comma, for those solutions. comma लगा के लिखो, for those solutions. पहला पॉइंट, does not obey Raoult's law. Does not obey Raoult's law. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, the total volume of solution will be greater than the volume of solute and solvent. Very good. Will be greater than the volume of solute and solvent. और वहां पर क्या था बेटा आइडियल सॉल्यूशन में? Very good. It means here delta V is greater than the 0. कल बताया था V स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन दो ये Q और W. देखो del V is greater than 0. Next, intermolecular. Next point देखो, intermolecular weak attraction forces will be present. Intermolecular weak attraction forces will be present in solution. Next, solution become endothermic. कैसा होना चाहिए solution? Endothermic. कल क्या था? एनर्जी के लिए चेंज के लिए अपन क्या लिख रहे थे? del x equals to 0. यहाँ क्या हो जाएगा? del x is greater than 0. देखो del x is greater than 0 और ग्राफ बनाओ ये वाला पॉजिटिव डेविएशन वाला. रात आ गए, कल नहीं आते. रात आ गए.
चलो नेक्स्ट आइडिया पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा लिखेंगे अपन दूसरी आइडिया कॉन्सेप्ट डेविएशन सॉल्यूशन which will be show solution which will be show negative deviation solution which will be show negative deviation from the Raoult's law from the Raoult's law नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कहां जाएगा नीचे आ जाएगा ये रहे अंतर की बात और जब नीचे आएगा तो नीचे ग्राफ कब आएगा जब वेपर प्रेशर क्या होगी इस एक्सिस को मैंने वेपर प्रेशर ली है जब वेपर क्या बनेगी कम बनेगी वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर वेपर कब कम बनेगी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बनने वाले इसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होंगे स्ट्रांग होंगे वेरी गुड इनकम पेयर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड लिक्विड आइटम व्हेन intermolecular attraction forces when intermolecular attraction forces in between solute and solvent will be more than the in between solute and solvent will be more than the solute and solvent very good will be more than the solute and solvent then vaporizing nature of solution will be बताओ increase or decrease very good then vaporizing nature of solution will be decrease and then solution will be show negative deviation then solution will be show negative deviation from the which law Henry law very good from the Raoult's law will be show negative deviation from the Raoult's law that type of solution will be formed when hydrogen bond will be formed in between solute and very good hydrogen bond will be formed in between solute and solvent for example water with alcohol water with alcohol कितनी वाटर में alcohol बता नहीं 40 सब नहीं बन सकते वाटर ठीक है 40 60 ये देखला बेटा देखो नेक्स्ट डायग्राम बनाओ पहले डायग्राम बनाओगे इस बार ग्राफ ऊपर के चांस आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में नीचे बना लिख लिया बना लिया डायग्राम अरे यार ये नीचे ये स्ट्रेट लाइन है इसे नीचे बन जाएगा ये रहे अंतर की बात चलो ले लो so for that type of solution first point does not obey Henry law does not obey कौन सा law Raoult's law does not obey Raoult's law clear second point the volume of solution will be less than the total volume बोर्ड पर से लिख लो delta v is less than 0
डेल्टा V is less than 0. नेक्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन बिकम, अभी अभी वहां पर ने कैसा लिया था एंडोथर्मिक, यहां पर कैसा हो जाएगा एक्सोथर्मिक. सॉल्यूशन बिकम एक्सोथर्मिक. सॉल्यूशन बिकम एक्सोथर्मिक. इट मींस del H is less than 0. ठीक है, ये याद रखिए बात. ये अपना राउट्स का हुआ आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन आइडियल के लिए. नॉन आइडियल में हमने पॉजिटिव डेरिवेशन की कर लिया और नेगेटिव डेरिवेशन. नेक्स्ट स्टडी देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है. वेरी गुड. सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है. क्या कहलाती है? मतलब देखो दोस प्रॉपर्टी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल. नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर्स पे डिपेंड करती है. वो सारी प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. अपने सिलेबस में 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कौन कौन सी? और सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्रेशर में फ्रीजिंग पॉइंट. 4 अपने सिलेबस में आपको जानना है. बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. अब पूरी यूनिट के अंदर जो कंसेप्ट चलेगा वो कंसेप्ट क्या चलेगा? मेरे सॉल्यूशन लेना है और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है बेटा. होमोजेनियस फ्रिक्शन कंपोनेंट है. एक तो कौन सा है? सॉल्यूट है एंड सेकंड वन बिकम सॉल्वेंट. सॉल्यूट मुझे कैसा लेना है पूरी यूनिट के अंदर? नॉन वोलेटाइल. कौन सा लेना है? नॉन वोलेटाइल. और सॉल्वेंट तो मेरा कैसे चल रहा है? अपन बात ही कर रहे थे सॉल्वेंट तो हमेशा कैसे चल रहा है. तो लिख लो इसे ऊपर जहां पर लिखा है ऊपर लिख लेना. खाली जगह नहीं होती पेज के ऊपर. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दो पार्ट, एक तरफ सॉल्यूट और एक तरफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट कैसा चलेगा अपना? नॉन वोलेटाइल. और अपना सॉल्वेंट कैसा चलेगा? वोलेटाइल. दिस मींस वेपर प्रेशर में केवल और केवल किसका कंट्रीब्यूशन है? सॉल्वेंट का कंट्रीब्यूशन है. सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. हो गया? ठीक है सर. चलो देखो देखो बेटा दोस प्रॉपर्टीज ऑफ बेटा सांस भी कभी दुखती, ध्यान रखना. मास्टर भी वहीं से उठ के आया है तो तुमसे ज्यादा तो रहा है अपने टाइम पे. ठीक है, लिखो दोस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. Those properties of महारानी श्री जया. तुम तो भी सही जगह पढ़ रहे हो, तुमसे साथ ज्यादा शानदार जगह से पढ़ रहे हो. Those properties of non-volatile solute. Those properties of non-volatile solute which will be depend upon the which will be depend upon the which will be depend upon the number of solute particles. Which will be depend upon the number of solute particles. Does not depend nature of solute particles. Does not depend nature of solute particles. Will be known as बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, लेकिन जैसे ही नंबर बढ़े वैसे ही चालू हो गए. देखो these are following four types. These are following four types. These are following four types. ठीक है, चारों को बता देता हूं, हेडिंग नहीं है. फिर एक पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर. पहला लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर. दूसरा लिखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तीसरा कौन सा बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और लास्ट वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. चाय बनाते हैं ना जब अपन, तो चीनी सबसे लास्ट में डालने ही कहा जाता है
और अब क्योंकि चीजें नुकसान देती है ना ज्यादा गर्म होने पे, केलोमल बन जाता है। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि जब लैक्टोज सुक्रोज वगैरह 12th क्लास में बाकी कैसे पढ़े हुए कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बनता है जिसे केलोमल के नाम से जाना जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए जब भी अपन चाय बनाते हैं तो चाय बनाते टाइम ज्यादातर क्या ध्यान रखना है अपन तो शुरू, ठीक है, लास्ट में डालते हैं। आप देखना चाय जब उबलने पे आ रही है और उस समय उसमें चीनी डाल दो तो एकदम नीचे चली जाती है, नहीं चली जाती? क्यों चली जाती है नीचे? क्योंकि जो चीनी है वो नॉन वॉलेटाइल है और नॉन वॉलेटाइल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? तो पूरी यूनिट के अंदर जैसे दूसरा एग्जांपल अपन ये वाला पढ़ेंगे, मैं जो बता रहा था कि जो आइसक्रीम लगाने वाले होते हैं, वेंडर्स जो होते हैं, आप देखे होंगे वेंडर्स के पास गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर अप्रॉक्स 45 मान लें अपन, इतना पहुंचा होता है 45 डिग्री सेल्सियस। और वेंडर जब कियोस्क लेके निकलता है, ठीक है ना, उस कियोस्क में कुछ भी नहीं होता, क्या लाइट का कोई कनेक्शन होता है, कोई डीप फ्रीज होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई गैस होती है, कुछ भी नहीं होती। लेकिन क्या होता है, सिंपल आइस के साथ सॉल्ट होता है और उस सॉल्ट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्ट का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उस आइसक्रीम वाले को ये नहीं पता कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको इसका एप्लीकेशन पता है। तो अपन जैसे मटका कुल्फी जब खाने जाते हैं तो मटका कुल्फी का सॉल्टी नहीं लगता, उसका टेस्ट सॉल्टी लगने का रीजन यही है। एक्चुअली क्वेश्चन भी आता है कई बार कि वाटर जो आइस है, आइस के द्वारा हम रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री मिनिमम कर सकते हैं? समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? आइस के द्वारा मैं सपोज मुझे अपना रूम को कूल करना, चलो तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मुगल राजा हुए बहुत सारे और मुगल राजाओं को शौक बहुत थे। तो उन मुगल राजाओं में एक शौक था अकबर को, और अकबर को दारू पहले सारे पीते थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, और इनमें सबसे ज्यादा शराब पीने का शौक किसको था? अकबर को था। अकबर का क्या था, देखो कभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें पढ़ोगे कि अकबर ने गुजरात का सबसे तीव्र गति से अभियान किया था। दिल्ली से गुजरात 11 दिनों में पहुंच गया था उस समय, और उस समय दिल्ली से गुजरात 11 दिनों में पहुंचना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि उस समय पैदल जाना होता था। उस समय थोड़ी सी केटीएम तो टाइगर सो बुलेट सो नहीं, उस टाइम तो क्या थी, पूरी सेना को लेके जाना है, सारे काम करने, तो 11 दिन के अंदर पहुंचा था। तो अकबर की क्या थी, भाई देखो बादशाह तो है ही था, शहंशाह था, शहंशाहों के शौक तो उसको शराब पीने का बहुत ज्यादा शौक था, और एक उससे कभी गर्मी बर्दाश्त नहीं, तो वो अपने महल में हमेशा बर्फ लगवा के रखता था। तो उसके लिए उस समय बर्फ बनाने की टेक्निक तो थी हिसाब, अब तो अपने पास टेक्नोलॉजी है, बर्फ बना लेते हैं। तो उस समय बर्फ उसके लिए हिमालय से तोड़ के बर्फ आती थी। वह क्या था, हिमालय से सैनिक लगे हुए थे, उसका एक डिपार्टमेंट था, जो डिपार्टमेंट इसी काम को देखता था। वो क्या करता था, वहां से बर्फ तोड़ते थे। सोचो बर्फ को किस अमाउंट में तोड़ते होंगे, और हिमालय से बर्फ को तोड़कर कहां पर लाया जाता था, दिल्ली लाया जाता था, और उस बर्फ को उसके महल में लगाया जाता था, जिससे उसके बर्फ महल का टेम्परेचर क्या रहे, कम रहे, और प्लस उसके तक तक समझ रहे हो ना, वही 60-40 में पैक बना के पीता था, बहुत ज्यादा दारू पीता था, जितने भी सब दारू पीते थे। पढ़ा होगा ना, राणा सांगा से लड़ने कौन आया था, वो बाबर। उससे पहले उसने अपने शराब के बर्तनों को तोड़ दिया और कह दिया मैं दारू नहीं पीऊंगा और सब लड़ेंगे ये वो, और जिस दिन जीत गया तो सबसे पहले क्या पी, दारू पी लिया। ये रहे तक की बात। तो सोचो वो जो आइस आती होगी, वो आइस कैसे लाते होंगे उस आइस को, वरना नॉर्मल कंडीशन में आइस को अगर लेके आए तो आइस पिघल जाएगी, इसीलिए उस आइस को किसके अंदर रख के लाते थे, सॉल्ट के अंदर, आइस के द्वारा। अच्छा आइस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप मेरी बात सुनना, अगर आइस से टेम्परेचर कम करते हैं ना, आइस से मिनिमम टेम्परेचर कितना बढ़ाया जा सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता आइस का। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? आइस का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे इसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज को चील्ड करना है, कूल करना है, तो आइस मैं कितनी बर्फ डाल लूं बेटा, 60-40 में टेम्परेचर मिनिमम कितना पहुंचेगा, 0। मैं सोचूं कि -10 डिग्री हो जाए, नहीं होगा, कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इस आइस के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है, सॉल्ट मींस NaCl, क्लियर है यहाँ तक बात? तो इस सॉल्ट को मिक्स करने से जो इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो रहा है ना, वो माइनस अप्रोक्सीमेट 23 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसीलिए जो वेंडर है, जो अपनी कियोस्क लगा रहा है, जो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में भी 45 डिग्री सेल्सियस पे भी अपन ने कभी देखा, अपन कितनी भी फैमिली पैक लेके आए और कितनी भी स्पीड से बाइक भगा ले, घर तक लाते लाते वो क्या हो जाता है, हल्का सा मेल्ट हो जाता है, कि नहीं हो जाता मेल्ट। लेकिन उसका
एज इट इज रहता है, जबकि वो पूरी सड़क पे बेच रहा है, कोई कनेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि वो आइस के साथ किसको मिक्स कर रहा है? सॉल्ट को। और आइस के साथ सॉल्ट को मिक्स करने से डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया और 0 डिग्री से वो कितने पहुंच गया? माइनस। समझ में आ गई यहाँ तक? जो मैंने सॉल्ट लिया है बेटा, सॉल्ट वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल है। और अभी अभी क्या लिखा है मैंने? पूरी यूनिट के अंदर सॉल्यूट कैसा चलेगा और सॉल्वेंट कैसा चलेगा? क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो पहली हेडिंग, पहली हेडिंग क्या है? पहले देखो केवल ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक तो प्रेशर होता है, मैं कह रहा हूँ ऑस्मोसिस। हाँ जी बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो वही है, पेपर में से लिख के आएंगे सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वही है, वही है वही। हाँ बताओ डेफिनेशन बताओ। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। कौन कौन? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट by the semi permeable membrane। देखो, when two different concentrated solution, when two different concentrated solution, when two different concentrated solution will be separated out by the, will be separated out by the SPM, मतलब semi permeable membrane will be separated out by the SPM, will be separated out by the SPM। Then particle of solvent, then particle of solvent, then particle of solvent will be show movement। solvent की बात कर रहा हूँ। then particle of solvent will be show movement from their lower concentration to solvent की बात कर रहा हूँ, solution की बात कर रहा हूँ। हाँ तो solvent तो higher से lower आएगा, solution आएगा ना lower से higher। solvent मैं बताता हूँ। from lower to higher concentration, from lower to higher concentration will be known as osmosis, will be known as osmosis। बहुत बढ़िया, बातचीत करो सर इनसे 30-20 कुछ। हाँ मुझे ऐसी बात होती है तो सबसे अच्छा। चलो आपसे चलो ठीक है। क्या करो बेटा? हेडिंग लिखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा बिना चार्ज के तो कुछ भी नहीं होता, हम कैसे नहीं पढ़ सकते? तो इसका बताएं। बनाना स्टार्ट करो बेटा, आउटलाइन डायग्राम बन गया।
ठीक है, एक एपरेटस सेटअप किया मैंने, बीकर लिया, ठीक है ना, और इस बीकर के ऊपर उल्टी तिसल कीप रखी, तो कीप में सिंबल वाली लगा काम आती है, इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, तिसल कीप रख दी उल्टी, और इस तिसल कीप के मुंह पे ऊपर क्या बांध दी बेटा मैंने, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और बेटा इसके अंदर तो किसको भर दिया, सॉल्यूशन को, और इसके अंदर किसको भर दिया, प्योर सॉल्वेंट को, अकॉर्डिंग टू टाइम जो मॉलिक्यूल है धीरे धीरे सॉल्वेंट से किसमें जाने लगेंगे बेटा, सॉल्यूशन में जाने लगेंगे, और जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने लगेंगे तो इसका जो तल है, इसका जो प्लेन है वो धीरे धीरे ऊपर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने एक सेटअप किया, सेटअप में एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड से इसको बांध दिया, कीप को अटैच कर दिया, कीप को उल्टा करके इसको रख दिया, कीप के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और कीप के अंदर मैंने क्या भर दिया, सॉल्यूशन, और इसको कीप को किसमें रख दिया बेटा, प्योर सॉल्वेंट में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, बाय द ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा सॉल्वेंट के पार्टिकल किसमें धीरे धीरे एंटर होने लग जाएंगे, सॉल्यूशन में एंटर करने लग जाएंगे, और जब सॉल्यूशन में एंटर करेंगे तो इसका प्लेन धीरे धीरे ऊपर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। अब मैं बाहर से, आप मत बनाना बताएगा, अब मैं बाहर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाता हूँ, बाहर से सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या लगाता हूँ, प्रेशर लगाता हूँ, और वो प्रेशर क्या करता है, इस ऑस्मोसिस के होने की जो मैकेनिज्म है उसको रोक देता है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देता है, वो प्रेशर ही कौन सा प्रेशर कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, इतना शुरू करो फटाफट से। in this experiment, in this experiment in a vessel, in this experiment, ये vessel या beaker या भगोना कुछ भी लिख लो, in this experiment in a beaker solvent will be filled, solvent will be filled, and a thistle keep, and a thistle keep will be put into it, and a thistle keep will be put into it, and its mouth will be covered by, and its mouth will be covered by SPM, SPM, and thistle keep will be filled by the solution, filled by the solution, लिख बेटा, by the, देखो by the osmosis, by the osmosis solute particle, solvent particle, by the osmosis solvent particle will be passes from semi-permeable membrane and goes to solution, and goes to solution. So the plane of solution will be increased. So the plane of solution will be increased. And in this condition, plane will be observed at small h height. Plane will be observed at small h height. Then in this condition, a hydrostatic force. Then in this condition, a hydrostatic force. Then in this condition, a hydrostatic force will be applied. Hydrostatic force will be applied on a solution. On a solution, which will be stopped. Which will be stopped
the process of which will be stopped the process of osmosis. The process of osmosis, that pressure will be known as osmotic pressure. That pressure will be known as osmotic pressure. ठीक है? It means pi is equals to HdG. Pi is equals to HdG. Ig से ज्यादा है, Ig का ट्रांसफर हो गया है बेटा. भरतपुर Ig और भरतपुर Sp दोनों का ट्रांसफर. Pi बराबर HdG. देखो pi is equals to क्या है? Pi is equals to osmotic pressure. Pi is equals to osmotic pressure. H is equals to height of solution. Height of solution. D is equals to of solution. D is equals to density of solution. And small g is equals to gravitation. Gravitation. प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं? लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है. सही कह रहा है. प्लाज्मोलाइसिस. पायरोलाइसिस होता है ना, जैसे पायरो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर से जब हीट प्रोड्यूस होता है पायरोलाइसिस कहते हैं. हां, क्या होता है बता दो. डीपीडी बराबर क्या होता है? डीपीडी बायो मेथड. डीपीडी क्या होता है? डीपीडी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बताओ. dPd is equals to OP minus TP. वेरी गुड. अच्छा TP क्या है? टर्गल प्रेशर. टर्गल प्रेशर को डिफाइन करना. सर जो अंदर से लगता है सेल के अंदर से लगेगा, सेल वॉल पे लगता है. वेरी गुड. ठीक है, चलो हेडिंग लिखो. किसी का सिलेबस है क्या? ऐसी चीज डाउनलोड थोड़ी करते हैं सर, अपना कुछ और ही सीखना है. देखो बेटा हेडिंग लिखो. मेथड फॉर कैलकुलेशन. मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर. मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. करना बेटा किसी के पास नहीं है क्या? क्या यार ऐसे अपनी बता तू, उसकी छोड़. अपनी खराब क्या ना. देवराज की चिंता कर रहा है. देवराज चिंता कर रहा है, अपनी बता. एक सेकंड. क्या भतीजा है कि पतीला है? बेटा गलती कर रहे हो. बिना फीस दिए तो कर्ण भी शिक्षा मिल गया था. कर्ण भी समय आने में भूल गया था. तो भी तो जाओ बेटा. अभी तो लग रहा है मजा. दिमाग उठाता पूर्ण मानते. कुछ ना कुछ अवश्य लेके जाओ. मैं ये घर पूरी तो देखो क्या पुराने वाला मत करो डाउनलोड. 2000 इसी सेशन का तो अपडेट नहीं किया है इन्होंने. क्या किया है कि जो सिलेबस का जो डिक्रीमेंट किया है, डिप्रेशन किया है, वो कैसे किया है? वो हर यूनिट में से लास्ट वाला पार्ट हटा दिया है. ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो कि पूरी यूनिट हटा दी हो. ये भी पूरा नेट की पूरी यूनिट. वो क्या कल परसों न्यूज़पेपर में भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है तो पूरा नहीं हटाया है. तो तुम ये मत सोचना कि 30% का मतलब है कि सब 30% ही हटा दिया होगा, लास्ट की 2 यूनिट डाल दी है. नहीं, चतुराई नहीं बेटा.
कैसे चतुर्थक गुण होता था? जब मैं पढ़ता था, जब मतलब मेरे बड़े भैया पढ़ते थे बीएससी में, तो उनके टाइम पे क्या सिस्टम था कि 10 क्वेश्चन आते थे करने के। और जैसे हम तो यूनिट लेके आते हैं, आप सबको पता है, यूनिट फर्स्ट में 2 आते हैं, यूनिट सेकंड में 2 आते हैं। उस टाइम टोटल 10 क्वेश्चन आते थे और उन्हें यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन नहीं होता था। और क्या लिखा होता था? कोई से 5 करो। कितने करो? 5। तो कितनी यूनिट याद करके जाते थे? यूनिट में से 2 आने, 3 यूनिट पूरी रट्टे लगाते थे वो बैठ के, क्योंकि 3 यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे और मुझे करने कितने? वेरी गुड, 5। आसानी से हो गया ना काम खत्म। पूरे नंबर आते थे, 3 यूनिट पढ़ी, सिलेबस भी आधा हो गया। फिर यूनिवर्सिटी वालों को जब ये चीज पता चली कि बेटा स्टूडेंट दिमाग लगा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ने भी दिमाग लगा लिया। यूनिवर्सिटी ने ऐसा कैटेगराइजेशन, और हर यूनिट को कितने, हर पूरे सिलेबस में कितनी यूनिट डाल दो? 5। और पांचों में से हर किसी में से क्या करो? 2 क्वेश्चन दो और 2 में से किसको करवाओ? 1 को। अब 5 यूनिट तो पढ़ेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों से गलती है। हाँ बिल्कुल नहीं चाहते वो ये यथार्थ है बेटा। देखो क्वालिटी तभी निकल कर आती है, ऐसे पास होने से भी क्या फायदा? क्वालिटी जब निकल कर आती है, देखो आईआईटी वगैरह के सिलेबस टफ क्यों है? इसलिए क्वालिटी निकलती, पास कर दो तो फायदा क्या है ऐसे पास होने से? ऐसे पास होगी जब हमारे अंदर कोई स्किल ही नहीं है, तो ऐसे पास होना क्या फायदा? बताओ। नहीं साहब, स्किल तो दूसरी वाली बहुत है अपने अंदर, क्या फायदा उस चीज का? समझो तुम मेरी बात। तो फिर उन्होंने क्या किया? 5 यूनिट कर दिया और 5 में से यूनिट के 2 पार्ट कर दिए, ऊपर वाली यूनिट में से 1 क्वेश्चन और नीचे वाली में से 1 क्वेश्चन। अब कर क्या? बहुत होशियार था अपने टाइम पे, 2.5 यूनिट ही पढ़ के गए। पहले 2 भी 3 पढ़ रहे थे, 5 में से कितने होके जा लेंगे? 2.5। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी को पता लगा, तब यूनिवर्सिटी अब क्वेश्चन मिक्स नहीं देता है। तुम्हें पता होगा, कुछ एक क्वेश्चन का कुछ पार्ट नीचे वाले में से, कुछ ऊपर वाले में से। क्यों? तुम्हारे फायदे के लिए तो है। नुकसान है सर, तुम्हारे फायदे के लिए तुम पढ़ोगे तो काम आएगा। ये सब चीजें कंपटीशन में नहीं है क्या? देखो सुनो मेरी बात, ये देखो, ये रही फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 50 तो चल रही है। देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हुए अपने। अरे हाँ है ना, तो बोलो। हाँ वेरी गुड। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अरे मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, सारे कराए। ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अपना चल रहा है ऑस्मोसिस और लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा कभी आपने एक बात सोची है कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा जाता है? आप 12th क्लास में पढ़कर आए हो एग्जैक्टली। सुनो चलो, आप 12th क्लास में पढ़कर आए सॉल्यूशन वाला चैप्टर, और आपने कभी सोचा कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर का यूज क्या है? ये सब चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? 4 पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या है? पेपर देना है, पेपर पास होना है, नौकरी लगनी है, ताकि अच्छी शादी हो जाए। कितनी अच्छी बात है। पर सोचो बेटा, एक्चुअली देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप आंसर देना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? बता। और क्या शादी में? वेरी गुड। कैसे पता चला? बुक्स में पढ़ा, लिख लिया। ऑक्सीजन में कितना है? सॉरी 16 कार्बन का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने तुमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछे, तुमने तुरंत रिप्लाई किया। मैंने पूछा सोडियम का, तुमने बताया। तुमने पूछा क्लोरीन का, तुमने बताया। तो मैग्नीशियम तुमने बताया। लेकिन कभी तुमने इमेजिनेशन करी ये सारे मॉलिक्यूलर वेट आए कहां से? तो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? सॉल्यूशन वाले चैप्टर का। हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं इसलिए कि हम किसको क्या निकाल सकें? मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकें। ये रहे अब तक की बात। अरे हाँ यार, याद रहेगी। तो इस यूनिट में मत दे, इस यूनिट में अपन पूरे दे दिया गया। इस यूनिट के अंदर जो न्यूमेरिकल आता है बेटा, वो न्यूमेरिकल आएगा मॉलिक्यूलर वेट। तुम ध्यान रखना। अच्छा सुनो, जब तुम सेकंड ईयर में थे, तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आए थे। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तुमने? यूवी और आईआर। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बारे में बताती है? कॉन्जुगेशन के बारे में। इसके बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मुझे क्या पता कि देखो समझो, थोड़ा टेक्निकली समझो। हमारे सिलेबस में थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एनएमआर तभी समझ में आएगी तुम्हारे। तो वो किसके बारे में बताती थी? कॉन्जुगेशन के बारे में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल। ये देखो तुम्हें पता है और मुझे पता है, इट इज अ वाटर। लेकिन एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को से कहा जाए कि ये वाटर है या नहीं है, इसको प्रूव करो, तो उसके लिए वो इसका क्या करेगा?
वेरी गुड, किसी ने सही कहा, पी जाए अगर जहर हो जाए, चाहे आप गटर को पानी भर दो मतलब पी ना ऐसा, मतलब वही आदत है ना, कह दो तो बुरा लग जाएगा, पी जा मतलब बच्चों मिल जाए बस पी जा बस, मैं तो सिर्फ ये हूँ जहर पी जा। आप क्या, किसी ने सही कहा, इसका मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा और इसका टेस्ट करके रिजल्ट निकालूंगा। याद करो 12th तक फर्स्ट ईयर में आप टेस्ट प्रैक्टिकल की फाइल में लिखकर आए थे, प्रैक्टिकल आप मुझे बता दो, लेकिन आपने किया होगा कि आपको कंपाउंड दिया होगा और उसका फंक्शनल ग्रुप निकालना होगा, तो उस फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए आपने टेस्ट लिखा होगा, कंफर्मेशन टेस्ट लिखा होगा और फाइनली रिजल्ट लिखा होगा। अब आप कंपाउंड शुड बी हाइड्रोक्सिल एल्कोहल ईथर ऐसे लिखा था, उसके लिए आपने क्या किया, टेस्ट किया। सपोज दैट आज आप बीमार हो गए, तो बीमार होने के बाद आप सबसे पहले किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को आप सबसे पहले क्या बताते हैं, सिम्टम्स ही तो बताते हैं, और सिम्टम्स की बेसिस पे डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस मतलब डिजीज को पहचानता है, और डायग्नोसिस करके बंद कर दो, डायग्नोसिस करके क्या करता है,